Welcome back, friends. Let us continue our topic limits, exercise 7.3, and we are continuing with our question number 3. Evaluate the following limits. Evaluate the following limits. Question number first. Limit x tends to 1, x square plus x root x minus 2 upon x minus 1. Students, as you know, this exercise is based on the rationalization, etc. And if you see this particular question specifically, आगे के जितने भी क्वेश्चन हमने रैशनलाइज करके सॉल्व किए हैं उसमें 2 टर्म आपको ऊपर रूट में वगैरह में न्यूमरेटर में मिले हैं, बट एज कंपेयर टू दोस क्वेश्चन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन इज नॉट सिमिलर टू दैट कैटेगरी. बट यहाँ पे हमको एक ही ऐसा हमको दिख रहा है कि रूट में टर्म दिया है x, वो भी x रूट x में रूट x करके, और उसके अलावा और कोई टर्म रूट में नहीं है कि जिससे कि हम रैशनलाइजेशन का क्राइटेरिया यहाँ यूज कर सकें. वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट आई एम डिस्कसिंग, and even you need to compare all those questions where we have successfully rationalized and then we have evaluated this limit questions, but this is not of those category. तो यहाँ कैसे करा जाएगा, this is a important discussion and it is important to understand. तो एक तो पहली बात मुझे ये हम लोग ऑलवेज चेक करते हैं, एज यू नो, कि दैट डिनोमिनेटर इज गोइंग टू बी 0 or not, and if it is denominator is 0, then we need to factorize, we need to rationalize, whatever the way you can proceed, you supposed to continue. But here first of all I would like to check with the denominator. When I apply the limit x tends to 1 means x के वैल्यू 1 रखेंगे तो डिनोमिनेटर 0 होता है कि नहीं होता है? 1 minus 1 0 होना है obviously. Now the question is, that means we can't apply directly the limit, that is a sure part, but now what else we can see in the numerator. तो हमें ये x minus 1 का जो फैक्टर है वो कहीं ना कहीं कैंसल करना है. x minus 1 का जो फैक्टर है वो कहीं ना कहीं कैंसल करना है. तो उसके लिए मुझे न्यूमरेटर में भी फैक्टर की जरूरत पड़ेगी जिसके अंदर x minus 1 एक फैक्टर हो. x minus 1 should be one of the factors in the numerator so that I can cancel that x minus 1 from the denominator. तो ये 2 का मुझे फैक्टर आपको करके दिखाना है, but I can split this minus 2 like this. Limit x tends to 1, I can write x square plus x root x minus 1 upon x minus 1. So minus 2 को मैंने लिखा है minus 1. Can I write? Now what to do? I can consider specific terms together where I can take x square minus 1 together with x root x minus 1.
होल अपॉन x माइनस 1। नाउ मतलब मैंने -1 को दोनों के लिए अलग अलग कंसिडर कर लिया है। नाउ आई कैन स्प्लिट द डिनोमिनेटर। सो व्हाट आई कैन डू, x square minus 1, I can write 1 square upon x minus 1 plus x root x minus 1 upon x minus 1. I'm sure you are getting this part, this particular step, splitting the denominator. अब जानबूझ के मैंने ये जो लिमिट है, अब मेरे को ये दोनों को अप्लाई कर देना है। दिस इज लिमिट x टेंड्स टू 1 फॉर f of x plus g of x. You know the algebra of limit x tends to a, f of x plus g of x. Then you can write like this, limit x tends to a for f of x separately plus limit x tends to a for the second function as g of x. So you can have this algebra of limit here. You can apply limit x tends to 1, x square minus 1 square को मैं फैक्टर करता हूं, a minus b, a plus b के हिसाब से a minus b, a plus b upon x minus 1 plus limit x tends to 1 for second function x root x minus 1 upon x minus 1. I'm sure this part is clear to all of you. अब यहाँ दो लिमिट के क्वेश्चन बन गए, एक ये पहला वाला और एक दूसरा वाला, है ना। दोनों के लिए अभी अलग अलग सोचना है। तो पहले तो पहला वाला जो है उसमें तो ये चीज मेरे को कैंसिल करने मिल गई। देखो x माइनस 1 वाला फैक्टर कैंसिल हो गया एंड आई वाज सर्चिंग फॉर द सेम थिंग दैट x माइनस 1 जो है वो डिनोमिनेटर में कैंसिल होना चाहिए। सो एज नाउ आई कैन से लिमिट x टेंड्स टू 1 for x plus 1, there is no denominator now pending, plus सेकेंड फंक्शन में देखो तो आपको अब याद आएगा कि सर ये ऐसा आपको अलग से क्वेश्चन दिया होगा तो इसके अंदर हम रैशनलाइजेशन का मेथड यूज कर सकते हैं। यस और नो? इन दिस वी कैन यूज रैशनलाइजेशन मेथड। So now here we can rationalize, क्योंकि इस फंक्शन में अभी भी x माइनस 1 नीचे डिनोमिनेटर पड़ा है जो अभी भी हमारे को नीचे 0 आना है। सो हमें वो डायरेक्ट लिमिट अप्लाई करने मिलने वाला नहीं है। सो हियर वी हैव टू स्टिल कैंसिल दिस x माइनस 1 वाला टर्म। सो नाउ वी कैन rationalize with the numerator conjugate x root x plus 1 upon x root x plus 1. Let me consider the bracket. और जो पहला लिमिट का टर्म है वो फंक्शन है जो उसमें लिमिट लागू हो जाएगा सीधे सीधे। दैट मीन्स हियर 1 plus 1, that will be the application of limit in the first function. Second function अभी भी क्लियर नहीं हो रहा है तो उसको भी रैशनलाइज कराए हैं हमने। So we can still simplify further. न्यूमरेटर में देखो root x minus 1 into x root x plus 1, a minus b, a plus b का रूल। So x root x a square minus b square upon x minus 1 into x root x plus 1. Okay. 2 plus limit x tends to 1, स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, x का स्क्वायर x square, so this is going to be x into x square.
देखो भाई कैसे किया, रूट जो है वो स्क्वायर के साथ कैंसिल हो गया, एक्स बच गया, और एक्स का स्क्वायर एक्स स्क्वायर, फाइनली ये एक्स क्यूब हो जाएगा -1 अपॉन x -1, डिनोमिनेटर एज इट इज x रूट x plus 1, and hence we can now consider in the numerator, this is x tends to 1, and we can consider x cube, and this 1 can be written as 1 cube. अभी भी देखो स्टूडेंट्स, नीचे डिनोमिनेटर में x -1 का जो टर्म है वो कैंसिल हुआ नहीं है, तो अभी भी लिमिट x अब अप्लाई कर नहीं पाएंगे क्योंकि नीचे डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा. सो स्टिल वी आर इन द सर्च टू कैंसिल दिस डिनोमिनेटर x -1 वाला टर्म. 2 प्लस लिमिट x टेंड्स टू 1. अब ये a क्यूब माइनस b क्यूब का फॉर्मूला आपको यूज करना है न्यूमरेटर में, x -1, देन द नेक्स्ट एक्सपेंशन क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस क्या है फॉर्मूला, ए स्क्वायर प्लस 2ab माइनस बी स्क्वायर. हाँ बराबर है, ए क्यूब प्लस ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर. तो इससे हम एक्सपांड करेंगे, दिस इज गोइंग टू बी x into 1 मतलब x and 1 square that is 1 upon x minus 1 into x root x plus 1. अब देख लीजिए भाई ये x minus 1 वाला फैक्टर क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा. सो जो भी है अब देख लो, जो बचा है x square plus x plus 1 अपॉन x रूट x प्लस 1. क्या अब जो ये डिनोमिनेटर आपके पास बच रहा है उसमें डिनोमिनेटर 0 होता है क्या, यस और नो, चेक करो. तो कि नीचे x की जगह पे 1 डालो, 1 रूट 1 मतलब 1, 1 इंटू 1 1, 1 प्लस 1 2, नीचे डिनोमिनेटर 0 होता नहीं है. सो हियर यू टू एग्जीक्यूट द लिमिट, apply the limit 1 square plus 1 plus 1 whole upon 1 root 1 plus 1. यहाँ रीजन दीजिएगा, आगे भी लिमिट अप्लाई किया तो रीजन दीजिएगा, since x tends to 1 which means x is not equal to 1, which means x minus 1 is not equal to 0. And now the conclusion, 1 plus 1 plus this is 3 upon 2. यहाँ पे आप क्लियर करो लास्ट एलसीएम लेके, 4 plus 3 7 upon 2. देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया ये, क्योंकि इसमें मैंने रैशनलाइज राइट फ्रॉम बिगिनिंग नहीं किया है. आई हैव नॉट रैशनलाइज्ड फ्रॉम द बिगिनिंग, और बिगिनिंग से रैशनलाइज करने के लिए मेरे पास ऑप्शन भी नहीं था. I have first splitted that constant. Let me repeat the procedure, repeat the steps. मैंने पहले ये -2 को स्प्लिट किया, -1 एक -1 एक्स स्क्वायर के साथ लिया, और दूसरा -1 मैंने x रूट x के साथ लिया, like this. And then I have splitted the denominator with both these numerators, and then in the first split में मैंने फैक्टर करके x स्क्वायर -1 स्क्वायर का फैक्टर करके नीचे डिनोमिनेटर का एक जो फैक्टर है वो कैंसिल किया, जिससे कि पहला वाला फंक्शन जो लिमिट का है वो सॉल्व हो गया. बट व्हाट अबाउट द सेकेंड फंक्शन, तो उसके लिए फिर यहाँ रैशनलाइज होना पॉसिबल है, तो फिर मैंने वहां रैशनलाइजेशन का सिस्टम यूज कर दिया, बराबर है. एंड आफ्टर दैट रैशनलाइजेशन आई हैव क्लियर्ड दैट पार्ट आल्सो, वेयर दैट इज अंडर ए क्यूब माइनस बी क्यूब का जो रिजल्ट आया उससे उसको मैंने एक्सपांड करके x -1 वाला फैक्टर कैंसिल किया, एंड देन इन द डिनोमिनेटर आई हैव फाउंड दैट
non-zero element is coming and I have immediately applied the limit straight away. तो ये ध्यान रखने वाला क्वेश्चन था, जैसे कि आगे के सभी क्वेश्चन में आपने देखा कि रैशनलाइजेशन प्रोसीजर हम पहले से इस्तेमाल करते आ रहे थे और हो सकता था इसे कर लेते थे, हम उस हिसाब से सिचुएशन देते थे क्वेश्चन में. इन दिस क्वेश्चन दे हैव नॉट गिवन दैट पर्टिकुलर टाइप ऑफ ऑप्शन कि भाई पहले से आपको रैशनलाइज करने मिलने वाला नहीं है, सो उसको थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं आपको एडजस्ट करना पड़ेगा. दैट टाइप ऑफ क्वेश्चन इज प्रोवाइडेड. Let us move to the next question, number second. Question third का second. Limit x tends to 0. Root 1 plus x square minus root 1 plus x whole upon under root 1 plus x cube minus root 1 plus x. भाई साहब, इसमें न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी दोनों रूट के अंदर टर्म्स दिए हुए हैं. सो इट इज एक्चुअली अ सिमिलर टाइप ऑफ क्वेश्चन व्हाट वी हैव डन. क्वेश्चन फर्स्ट का थर्ड देखो, अपने न्यूमरेटर के भी कॉन्जुगेट का रैशनलाइजेशन वगैरह किया और इसका डिनोमिनेटर को भी करना पड़ेगा. दैट टाइप ऑफ क्वेश्चन. तो चलिए कंटिन्यू करते. इसमें कोई ज्यादा बड़ा नया लॉजिक नहीं है, लेकिन लेंथी हो जाता है. सो यू कैन स्टार्ट बाय योर ओन ऑल्सो. आई एम ऑल्सो डूइंग साइमल्टेनियसली. आप आगे रहेंगे. और थोड़ा कहीं ना कहीं लगता हो तो शॉर्टकट अपनाने का, फटाफट डायरेक्ट कोई स्टेप लगता है तो करने का. डोंट ट्राई टू involve in unnecessary steps. So I would be doing directly few steps. पहले तो numerator factors का conjugate देखते हैं हम. या else you can see for the denominator also. कोई भी पहले लीजिए, चलता है. So न्यूमरेटर फैक्टर का कॉन्जुगेट करके आगे बढ़ते. पहले अब हम डिनोमिनेटर का लेंगे. 1 प्लस एक्स क्यूब प्लस रूट 1 प्लस एक्स होल अपॉन 1 प्लस एक्स क्यूब प्लस रूट 1 प्लस एक्स. ओके, अब देख लो किसका रूल क्रिएट कर रहे हैं हम. a प्लस बी ए माइनस बी, ए प्लस बी ए माइनस बी. तो ये जो है न्यूमरेटर में a माइनस बी और ये हो गया a प्लस बी, और डिनोमिनेटर में ये हो गया a माइनस बी और ये a प्लस बी. देखो मैंने बराबर से हाईलाइट किया हुआ है. और उसके साथ अपना रूल बन जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का. करेक्ट. 1 प्लस एक्स स्क्वायर ये हो गया a स्क्वायर माइनस रूट 1 प्लस एक्स बी स्क्वायर. और रही बात ये जो एक फैक्टर अपना एज इट इज पड़ा रहेगा. दिस इज रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस रूट 1 प्लस एक्स होल अपॉन. नीचे भी दे आपके पास ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का रूल से 1 प्लस ये हो जाएगा ए स्क्वायर, दैट इज 1 प्लस एक्स क्यूब
होल स्क्वायर माइनस √1 प्लस एक्स स्क्वायर। ओके, और ये वाला फैक्टर एज इट इज रहेगा, √1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस √1 प्लस एक्स। ओके, तो स्क्वायर रूट तो कैंसिल हो जाना है स्टूडेंट्स। सो लिमिट x टेंड्स टू 0, स्क्वायर रूट शुड बी कैंसल्ड। सो ये हो जाएगा स्क्वायर रूट कैंसिल होने के बाद 1 प्लस एक्स स्क्वायर एंड माइनस है, ब्रैकेट ओपन होगा स्क्वायर रूट कैंसिल होने के बाद, तो अंदर साइन चेंज हो जाएगा भाई, ध्यान रखना। सो दिस इज 1 माइनस एक्स, then the next bracket will remain as it is. Okay, यहाँ पे भी नीचे डिनोमिनेटर में स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचना है, 1 प्लस एक्स क्यूब माइनस, बार माइनस अगेन ब्रैकेट ओपन होगा, अंदर साइन चेंज हो जाएगा, 1 माइनस 1 माइनस एक्स, और ये टर्म 1 प्लस √1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस √1 प्लस एक्स विल बी एज इट इज। ओके, अब देख लो ऊपर देखो, ब्रैकेट में 1 माइनस 1 कैंसिल हो रहा है और नीचे भी 1 माइनस 1 कैंसिल हो रहा है। बचा क्या, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, देख रहे हैं आप लोग ब्रैकेट में, उसमें से मैं एक्स को कॉमन ले सकता हूं, ठीक बात है, एक्स को मैं कैंसिल करूंगा, एक्स को ऊपर भी कॉमन ले लूंगा, नीचे भी कॉमन ले लूंगा, और उसके बाद में कैंसिल कर दूंगा। सो यहाँ बचेगा x माइनस 1, सेकेंड ब्रैकेट एज इट इज, √1 प्लस एक्स क्यूब प्लस √1 प्लस एक्स होल अपॉन, नीचे भी x को कॉमन ले लीजिए, इट विल बी एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस √1 प्लस एक्स, और देख लीजिए ये x कैंसिल हो गया। अब स्टूडेंट्स ध्यान रखना, x कैंसिल हो जाने के बाद डिनोमिनेटर में आप चेक कर लीजिए, अब आपके पास जो बचा हुआ है उसमें आप x की वैल्यू 0 सब्सटीट्यूट करोगे भी, तो क्या डिनोमिनेटर 0 होता है क्या, तो क्या 0 स्क्वायर 0 माइनस 1, दैट मीन्स माइनस 1 बचा हुआ है। नेक्स्ट ब्रैकेट में आप देखो, रूट के अंदर 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, तो रूट में 1 बचेगा, प्लस सेकेंड रूट में 1 प्लस 0 1 रहेगा, √1 बचेगा, 1 होता है √1 मतलब, तो 1 प्लस 1 2 इंटू उसके पहले के ब्रैकेट में आपको मिला हुआ है -1, तो वो 0 होता नहीं है, 0 होना नहीं है। सो नाउ यू कैन इजीली अप्लाई द लिमिट, एज डिनोमिनेटर वी आर नॉट गेटिंग 0, so we can here execute these limits, 0 minus 1, 1 plus 0 cube, 1 plus 0, 0 square minus 1, 1 plus 0 square plus 1 plus 0, इधर लिमिट अप्लाई किया है, रीजन देना चाहिए हमको, बराबर है, दैट इज x tends to 0, therefore डायरेक्ट खत्म हो जाएगा, x is not equal to 0, and now -1 यहाँ बचेगा, यहाँ पे √1 प्लस √1 अपॉन -1 यहाँ बचेगा, √1 प्लस √1, दिस इज माइनस माइनस नीचे से ऊपर से भी कैंसिल हो जाना है, एंड 1 का मल्टीप्लीकेशन में कोई मतलब नहीं रहेगा, माइनस माइनस कैंसिल ऐसा भी बोल सकते हो, और √1 बोलेगा तो 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 1, that is 2/2 again 1, और you can as टोटली ऐसा कैंसलेशन भी दिखा सकते थे ना स्टूडेंट, देखो -1 भी कैंसिल है, देखो मैं रेड से बता रहा हूँ, और ये पूरा ब्रैकेट भी जो है ना वो भी तो कैंसिल है, सो डायरेक्टली यू कैन मूव टू दिस पर्टिकुलर वन, एवरीथिंग इज कैंसिल्ड फ्रॉम न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, डिवाइडिंग डिवीजन के रिलेशन में, इसलिए 1 बचेगा।
कैसे भी करो, अल्टीमेटली आंसर इज 1। सो स्टूडेंट्स, ये ध्यान रखने वाला मुद्दा है कि वेर यहाँ दोनों बाजू रैशनलाइजेशन के केस में अपने को ये दूसरा क्वेश्चन देखने मिला है, एंड वेरी इंपॉर्टेंट दैट इजी होने के बावजूद स्टूडेंट्स गड़बड़ करते हैं कैलकुलेशन में, सिंप्लीफिकेशन में मिस्टेक छोटी मोटी कर लेते हैं, तो वो होना नहीं है। इसके लिए भले इजी होता है मगर प्रैक्टिस जरूरी है अपने को, कि उससे अपना एक्यूरेसी लेवल हमको बढ़ाना चाहिए। टेक डाउन फास्ट। Let us continue the next question. Question number थर्ड। जरा आइए थर्ड क्वेश्चन। क्या दिया है? लिमिट x टेंड्स टू 4, x स्क्वायर प्लस x माइनस 20 अपॉन रूट 3x प्लस 4 माइनस 4। भाई साहब, वापस से चेक करने की जरूरत है कि डिनोमिनेटर 0 होता है कि नहीं। देख लो, रूट के अंदर 3x अपॉन में, रूट में, डिनोमिनेटर में मैं बात कर रहा हूँ, रूट 3x है, तो x के जगह पे आप 4 डालो, तो 4 इंटू 3 12, 12 प्लस 4 16, 16 का स्क्वायर रूट 4, 4 माइनस 4 विल बी 0। सो डेफिनेटली डायरेक्ट तो लिमिट अप्लाई होना नहीं है, सो आई हैव टू रैशनलाइज इट। सो बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, इसमें कोई ज्यादा मुझे समझाना नहीं है। चालू कर लीजिए, आप भी आगे बढ़िए। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, अच्छा, और ऊपर क्वाड्रेटिक का फैक्टर बनता है तो देख लीजिए, तो आपका काम वहीं भी आगे जरूरत पड़ेगी वो भी करने की, तो आपका एक साथ काम हो जाएगा। देखो, सो 20 का फैक्टर क्या करना चाहिए? 5 इंटू 4, एंड माइनस करने पर, ये देखो माइनस करने पर ये इसके x के कोएफिशिएंट में 1 है, वो 1 मिलता है कि नहीं? सो यू कैन हैव फैक्टर्स, सो x x 5 4 जा, पहला मिडल टर्म का साइन है प्लस है, आई नीड माइनस, फॉर दैट आई विल डू माइनस। तो मैं यहाँ फैक्टर भी करके रखा हूँ न्यूमरेटर के अंदर, और साथ में अब मैं डिनोमिनेटर के टर्म के साथ रैशनलाइजेशन भी करने के लिए आगे बढ़ रहा हूँ। एक ही स्टेप में दोनों काम हो रहा है, देख लो। और अब आप ये देख लीजिए, डिनोमिनेटर में a माइनस बी, a प्लस बी का हिसाब आ जाना है। लिमिट x टेंड्स टू 4, x प्लस 5 इंटू x माइनस 4 इंटू रूट 3x प्लस 4 प्लस 4। डिनोमिनेटर में देखो a माइनस बी, a प्लस बी का एक्सपांशन अवेलेबल है, इट विल बी 3 स्क्वायर प्लस 4 होल स्क्वायर, दैट इज a स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर, दैट इज b स्क्वायर। a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, लिमिट x टेंड्स टू 4, x प्लस 5, x माइनस 4, 3x प्लस 4 प्लस 4, और स्क्वायर स्क्वायर तो कैंसिल हो गया, देख लो 3x प्लस 4 बचेगा, माइनस 4 स्क्वायर 16 बचेगा। सो सिंपल,
x tends to 4, x plus 5 into x minus 4 into root 3x plus 4 plus 4 whole upon, ले भाई 3x प्लस 4 माइनस 16 माइनस 12, क्या बोलता है माइनस 12। और अब आप देख लो 3 को कॉमन ले सकता हूं डिनोमिनेटर में, लिमिट x टेंड्स टू 4, x प्लस 5 x माइनस 4 रूट 3x प्लस 4 प्लस 4, न्यूमरेटर तो कभी से वही चल रहा है, नो चेंज। यहां से 3 को मैं कॉमन ले लूंगा, क्या बचेगा x माइनस 4, खत्म हो गई स्टोरी। x माइनस 4 वाला ब्रैकेट है जो कैंसिल हो जाएगा, बिकॉज ऑफ ओनली दैट x माइनस 4 माई डिनोमिनेटर इज कमिंग 0, so that particular bracket is cancelled. And now I can say that whatever the remaining part in the denominator, if I apply the limit, denominator is not going to be 0. So I have to apply limit here. So 4 plus 5, 3 into 4 plus 4 plus 4 अपॉन 3। यहाँ पे हम लिमिट अप्लाई कर रहे हैं तो रीजन देना है, as x tends to 4 therefore x is not equal to 4, therefore x minus 4 is not equal to 0, and therefore we can say 9 into root 12 plus 4 16 plus 4 upon 3, 3 3s are 9, 3 into 4 plus 4, that is 4 plus 4, 8, 8 into 3, 24, 24. Check it. बराबर कंफर्म कीजिए, if anything is wrong check कर लो, then I will move further. Okay, fine. Let us move to the next question, number 4. क्या दिया है देखो, लिमिट x tends to 2, x cube minus 8 upon root x plus 2 minus root 3x minus 2। भाई साहब ये भी सिंपल क्वेश्चन है, डिनोमिनेटर को रेशनलाइज करना है, चालू करो फटाफट, मेरे से आगे रहना, कोशिश में यही रहना सब लोग। और ऊपर न्यूमरेटर में आप देख लो x क्यूब माइनस 8 है, 8 को मैं 2 क्यूब करके a क्यूब माइनस b क्यूब का रिजल्ट डायरेक्टली लागू करने की बात करूंगा। आई डोंट वांट टू राइट 8 को 2 क्यूब एंड देन नेक्स्ट स्टेप में मैं उसको उसका फैक्टर करूं, मैं डायरेक्टली चालू कर देता हूं। सो आई कैन राइट x minus 2 then x square plus 2x plus 4। आई एम श्योर आप लोग बराबर समझ पाएंगे, फटाफट डायरेक्ट भी करने के लिए आना चाहिए अभी। एंड डिनोमिनेटर ये जो है, डिनोमिनेटर का जो टर्म है उसके लिए मैं फैक्टराइज ये रैशनलाइजेशन करूंगा। ठीक है,
भाई इसका फैक्टर होता है क्या? अभी देखो मेरे को ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फैक्टर करना है या नहीं करना है, ये मैं अभी भी डिसाइड नहीं कर रहा हूँ। जो पॉसिबल है तो कर सकते हैं, वो बात अलग है। नहीं पॉसिबल है तो करने की जरूरत है भी क्या, तो एज इट इज रखना पड़ेगा। वो सब डिपेंड वाली बात है। तो एट प्रेजेंट मैं ये एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4 ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फैक्टर ऐसे भी कर नहीं सकता, क्योंकि 4 का फैक्टर बनेगा 2 2 जा 4, प्लस करने पे 2 नहीं मिलने वाला है। 4 का फैक्टर बनेगा 4 1 जा 4, 4 प्लस 1 5 हो जाता है। वो कोई फैक्टर होने वाला नहीं। सो आई हैव टू कीप राइट नाउ एज इट इज। And in the denominator, a minus b, a plus b. I can write directly root x plus 2 whole square, a square minus b square. चलिए स्क्वायर स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा। तो क्या बचेगा? x प्लस 2 माइनस 3x प्लस 2। भाई साहब साइन भी चेंज हो जाएगा ना, बाहर माइनस है। भाई साहब -3x -x और +2 +2 +4, इसमें से भाई साहब मैं कॉमन क्या ले लूंगा? माइनस साइन कॉमन ले लूंगा और 2 को भी कॉमन ले लूंगा। ये देख भाई -2 कॉमन है, x-2 बचेगा, और वो x-2 जो है वो कैंसल हो जाना है। देख लो भाई साहब। एंड नाउ आई कैन सी इन द डिनोमिनेटर हमारे को कोई भी x का टर्म बचता नहीं है, और सिर्फ -2 बचता है, और लिमिट अप्लाई होने पे डिनोमिनेटर 0 होने वाला। सो आई कैन अप्लाई द लिमिट अपॉन -2। और अब यहाँ हम लिमिट अप्लाई कर पा रहे हैं। नेक्स्ट स्टेप में जहाँ लिमिट में अप्लाई करूंगा वहाँ रीजन देना है। यहाँ मैं लिमिट अप्लाई करूंगा, आई डोंट नीड टू राइट दिस, सो डायरेक्टली अप्लाई द लिमिट। सो x टेंड्स टू 2, 2 स्क्वायर प्लस 2 into 2 plus 4, 2 plus 2, 3 into 2 minus 2 upon -2. Reason please. Since x tends to 2, therefore x is not equal to 2, therefore x minus 2 is not equal to 0। खत्म हो गई बात। चलिए 4 plus 4 plus 4, 12 into 2 root 2 plus 2, 4 4 का स्क्वायर रूट 2
plus 3 into 2 6 6 minus 2 4 4 का square root 2 upon minus 2 that is minus 2 से cancel करो minus 6 and 2 plus 2 4 4 into 6 24 that is negative 24 is your ultimate answer. बहुत easy है as such. These are the very easy questions. Take down fast students. और मेरे को लगता है बहुत सौ का तो हो गया होगा मेरे से पहले. चलिए स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं. And now the last question we have to take. Question number fourth, main question number fourth का second questions. चलिए लिमिट z टेंड्स टू 4. खाली वेरिएबल बदल के z के हिसाब से क्वेश्चन दिया है और कुछ नहीं है. x के टर्म में देते हैं, y के टर्म में देते हैं, z के टर्म में दे रहे हैं. ठीक है. देखो है ना. अभी इसमें मेरे को बताओ, आप न्यूमरेटर को भी रैशनलाइज करोगे, डिनोमिनेटर को भी रैशनलाइज करोगे. दिखता है ना सबको, अभी तो मालूम पड़ता है ना फटाफट. लेट अस बिगिन फास्ट. चालू करेंगे फटाफट, आगे बढ़ेंगे मेरे से. चलिए लिमिट z टेंड्स टू 4 3 minus root 5 plus z upon 1 minus root 5 minus z into, रेशनलाइज करता हूँ पहले न्यूमरेटर का, पहले डिनोमिनेटर का करता हूँ. 1 माइनस उसका प्लस हो जाएगा 1 प्लस रूट 5 माइनस जेड अपॉन 1 प्लस रूट 5 माइनस जेड. अपने न्यूमरेटर का करेंगे 3 प्लस रूट 5 प्लस जेड अपॉन 3 प्लस रूट 5 प्लस जेड. ब्रैकेट कंप्लीट. लिमिट z टेंड्स टू 4. पहले इसका करेंगे 3 स्क्वायर में डायरेक्टली जा रहा हूं. ए स्क्वायर माइनस रूट 5 प्लस जेड होल स्क्वायर, और ये जो है इसका भी एक ब्रैकेट बना लो, और इसके बाद जो रहेगी टर्म 1 प्लस रूट 5 माइनस जेड होल अपॉन 1 स्क्वायर माइनस रूट 5 माइनस जेड होल स्क्वायर, और यहाँ रहेगा टर्म 3 प्लस रूट 5 प्लस जेड. ओके. लिमिट z टेंड्स टू 4. ये हो जाएगा 9 माइनस 5 माइनस जेड. ब्रैकेट ओपन होगा, साइन चेंज 1 प्लस रूट 5 माइनस जेड अपॉन 1 माइनस 5 प्लस जेड 3 प्लस रूट 5 प्लस जेड, और नाइन माइनस 5 4 माइनस जेड into 1 plus root 5 minus z upon, this is minus 4 plus z into 3 plus root 5 plus z. Limit z tends to 4.
बराबर जा रहे हैं सब लोग। 4 माइनस जेड इंटू 1 प्लस रूट 5 माइनस जेड। माइनस कॉमन ले लो नीचे, डिनोमिनेटर के पहले ब्रैकेट में से माइनस कॉमन आ जाएगा, 4 माइनस जेड बचेगा। दैट्स इट। 4 माइनस जेड वाला ब्रैकेट कैंसिल हो गया बिकॉज उसी के कारण नीचे जीरो आ रहा था एंड दैट आई हैव कैंसल्ड। सो आफ्टर कैंसलेशन क्या बच गया? लिमिट z टेंड्स टू 4, 1 प्लस रूट 5 माइनस जेड अपॉन माइनस 3 प्लस रूट 5 प्लस जेड। ओके, और ये माइनस बचने के बाद अब आपको यहाँ देखो डिनोमिनेटर जीरो नहीं आता है आफ्टर अप्लाइंग z इक्वल टू 4, तो यहाँ मैं लिमिट अप्लाई कर दूंगा। सो 1 प्लस रूट 5 माइनस 4 अपॉन माइनस 3 plus 5 plus 4, and here you give the reason since z tends to 4, therefore z is not equal to 4, therefore z minus 4 is not equal to 0, and hence it will be 1 plus root 1 बोलेगा तो 1 upon minus 3 plus root 9 बोलेगा तो 3, and this is going to be 2 upon minus 6, which is going to be minus 1 upon 3. वेरी इजी, बट देखो कहीं ना कहीं मिस्टेक होने का जो चांस है उसको आप मिनिमाइज करना है बाय हैविंग प्रॉपर प्रैक्टिस। टेक डाउन फास्ट। भाई साहब यहाँ पे तो मेरी एक्सरसाइज खत्म है, मुझे एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन आपके सामने रखना है बिफोर आई कंक्लूड दिस लेक्चर, एंड दैट इज, मैंने आपको आगे ही बताया था व्हेन आई वाज ऑन क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट, दैट टाइप ऑफ एक्स्ट्रा क्वेश्चन आई वुड लाइक टू गिव। देखो क्या है क्वेश्चन में, लिमिट, टेक डाउन ऑल ऑफ यू, x टेंड्स टू 3, फंक्शन इज x स्क्वायर प्लस रूट x प्लस 6 माइनस 12 अपॉन x square minus 9. All of you please look at that question number 3 का first. All of you please look at on this question number 3 का first of that exercise 7.3, जिसमें कि यही सिस्टम से अपन ने क्वेश्चन किया है और इसमें भी अपने को उसी पॉइंट ऑफ व्यू वही बेसिस पे आगे बढ़ना है। बट इन दैट क्वेश्चन -2 को मैंने स्प्लिट किया था -1 now can you tell this -12 should be splitted in terms of, tell me, -12 का स्प्लिट अप कैसे होगा? दूसरी एक हिंट आपको देके रखता हूं, जो भी -12 का आप स्प्लिट अप करोगे उसको x स्क्वायर के साथ लेना पड़ेगा। एक स्प्लिट अप ऐसा रहना चाहिए जो x स्क्वायर के साथ जाएगा और उस x स्क्वायर के साथ उसका फैक्टर बनाएगा। वो फैक्टर ऐसा होगा जो नीचे के ये फैक्टर के साथ कैंसिल होना चाहिए। टेल मी फास्ट। 3 and 4 sir. करेक्ट। सो आई एम डूइंग x स्क्वायर माइनस ये -12 का -4 -3, दैट इज -4 -3, दिस इज माइनस, मगर अपने को एक क्वाड्रेटिक का फैक्टर नहीं चाहिए। दिस इज नॉट डन। प्लस माइनस में मुझे फैक्टर उसका स्प्लिट अप चाहिए।
एंड यू सी दैट क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट मैंने कैसे किया हुआ है, -2 को मैंने लिखा हुआ है -1 दैट इज -1 प्लस -2। तो उसी तरह से मेरे को -12 को कैसे लिखना चाहिए, क्या मैं -6 लिखूं, क्या मैं -5 -7 लिखूं, कैसे लिखूं? समझ में आ रहा है मैं कैसे बताना चाहता हूं, कैसे मैं आपको पूछ रहा हूं, किस पॉइंट ऑफ व्यू क्वेश्चन हो रहा है? ये 4 3 ऐसा 12 करके बात नहीं करना है हमको। I'm confirming that what exactly our requirement is। आप लोग जरा सोचेंगे नहीं तब तक मुझे आंसर नहीं बता पाएंगे। Shall I repeat? -12 का ऐसा फैक्टर करो जिससे कि वो एक्स स्क्वायर के साथ एक फैक्टर चलने जाएगा, तो उसका जो भी फैक्टर बनेगा वो नीचे एक्स स्क्वायर -9 के साथ जो फैक्टर बनेगा उसके साथ कैंसिल हो जाना चाहिए उसका। थिंक प्रॉपरली। ऐसे क्वेश्चन कुछ आपके लिए एक्स्ट्रा क्वेश्चन में मैंने उसमें छोड़े भी रहेंगे, आपको दिखेंगे व्हेन यू विल सी। जो एडिशनल क्वेश्चंस मैंने क्वेश्चन बैंक दी हुई है उसमें यू विल फाइंड सच क्वेश्चंस, एंड देयरफॉर आई एम गिविंग एन एडिशनल क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू कि आपको एक बार मालूम पड़ जाएगा तो दूसरा नए क्वेश्चन इसी पैटर्न के होंगे तो यू कैन डू इट बाय योर ओन। टेल मी व्हाट शुड बी द स्प्लिट ऑफ -12 appropriately। बहुत ही आसान है, दिखता है ये नीचे कौन सा टर्म दिया हुआ है सर -3 या -9? हाँ नीचे -9 दिख रहा है ना आपको, यहाँ एक्स स्क्वायर -9, वो -9 को लो -3 -9 -3 -12 नहीं होता है क्या? कितना टाइम लगेगा सोचने को? सो माई एक्स स्क्वायर दिस -12 आई एम राइटिंग एज -9 -3 like this। So -9 I am writing here plus root x plus 6 -3 स्प्लिट हो गया, एंड नीचे एक्स स्क्वायर -9 उसका मैं फैक्टर करूंगा। दिस इज व्हाट वी कैन प्रॉपरली अप्लाई। अब हम ऊपर जो है फैक्टर करके ले सकते हैं, नीचे भी फैक्टर करके ले सकते हैं, और उसको हम लोग फिर नीचे का डिनोमिनेटर स्प्लिट कर देंगे। सो एज सच इन द डिनोमिनेटर अभी ही मैं ऐसा करूं तो मैं क्या कर सकता हूं मालूम है? अभी ही कर लो, बहुत ही इंपॉर्टेंटली। कोई लोग इसका फैक्टर करने के बाद ये स्प्लिट करते हैं डिनोमिनेटर को, तो भी चलेगा। अभी मैं कर लेता हूँ, देखो एक्स स्क्वायर -9 आई एम कीपिंग अ ब्रैकेट हियर, एंड नेक्स्ट आई एम कीपिंग दिस आल्सो इन अ ब्रैकेट। सो एक्स स्क्वायर -9 विद द डिनोमिनेटर एक्स स्क्वायर -9, और देखो मैं लिमिट को भी मैं स्प्लिट कर देता हूं, जैसे कि डिनोमिनेटर मैंने स्प्लिट कर दिया साथ में रूट एक्स प्लस 6 -3, और एक काम और भी मैं कर देता हूं, क्या कर देता हूं? नीचे का भी फैक्टर कर दिया। देखो कितना काम फास्ट कर रहा हूं मैं, और साथ में मैं क्या कर रहा हूँ, न्यूमरेटर का फैक्टर जो है उसका रैशनलाइजेशन कर देता हूँ। ओ बाप रे, इतना एक साथ मैंने कर दिया, देख लो काफी सारी चीज एक साथ कर ली। स्टूडेंट समझ में आ रहा है क्या? सुपर फास्ट गाड़ी भाग रही है। कीप इट इन दिस ब्रैकेट। क्या किया, डिनोमिनेटर को एक्स स्क्वायर -9 को मैंने बाइफरकेट किया, स्प्लिट कर दिया इसके नीचे और इसके नीचे। लेकिन जब भी मैंने पहले के नीचे रखा हुआ है तो उसमें एक्स स्क्वायर -9 ही रहने दिया, और दूसरे के नीचे रखा तो उसका मैंने फैक्टर कर दिया। तो नीचे का तो फैक्टर हो गया, लेकिन साथ में न्यूमरेटर के लिए मैंने रैशनलाइजेशन भी कर दिया साथ में। देखो मेनी थिंग्स एट अ टाइम आई एम परफॉर्मिंग। लिमिट एक्स टेंड्स टू 3, ये तो कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। 1 बचेगा, और 1 तो कांस्टेंट, उसको लिमिट लागू होके जो भी है
वो आंसर 1 का 1 ही रहने वाला है। वो एल्जेब्रा ऑफ लिमिट याद करो। एल्जेब्रा ऑफ लिमिट क्या था मालूम है? लिमिट x टेंड्स टू a फॉर k। k को लिमिट लागू होने वाला नहीं, k का k ही रहता है। याद आता है कि नहीं ये लिमिट, एल्जेब्रा ऑफ लिमिट? So here also like that we can say the limit x tends to 3 for 1 will be going to give me answer 1. And a next limit में क्या होने वाला है? क्योंकि न्यूमरेटर में a प्लस b a माइनस b का रूल लागू हो रहा है। x प्लस 6 रूट x प्लस 6 होल स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर अपॉन x माइनस 3 x प्लस 3 और ये रूट x प्लस 6 प्लस 3 बाहर है रूट के। ये रीजन यहाँ पे लिखना है जो अलजेब्रा ऑफ लिमिट का मैंने यूज किया है ना? ओके फाइन। सो दिस इज गोइंग टू बी गिव 1 ओनली। 1 भूलना मत, बिकॉज एडिशन में है 1 का इंपॉर्टेंस होता है। वो ऊपर देखो स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, बट along that लिमिट x टेंड्स टू 3 ये हो जाएगा x प्लस 6 माइनस 9 अपॉन x माइनस 3 x प्लस 3 इंटू रूट x प्लस 6 प्लस 3। भाई साहब ऊपर देखो क्या बचेगा लिमिट में, लिमिट के फंक्शन में लिमिट x टेंड्स टू 3 x माइनस 3 क्या बचता है? x माइनस 3 डिनोमिनेटर में भी x माइनस 3 कैंसिल हो जाएगा। x प्लस 3 इंटू रूट x प्लस 6 प्लस 3 1 प्लस भाई साहब ये कैंसिल हो गया। अब लिमिट जो है वो अप्लाई होगा 1 अपॉन x प्लस 3 रूट x प्लस 6 प्लस 3। अब देखो तो डिनोमिनेटर 0 होता है क्या? x का वैल्यू 3 डाल के तो 3 प्लस 3 तो 6 होने वाला है, और यहाँ पे 3 डालेंगे 3 प्लस 6 9, 9 का स्क्वायर रूट 3, 3 प्लस 3 तो 6 होने वाला। मतलब वी आर नॉट गोइंग टू गेट 0 इन द डिनोमिनेटर। वी कैन अप्लाई लिमिट नाउ 1 अपॉन 3 प्लस 3 इंटू रूट 3 प्लस 6 प्लस 3। यहाँ रीजन लिखा जाएगा सिंस x tends to 3 therefore x is not equal to 3, therefore x minus 3 is not equal to 0. And now we can simplify 1 upon 6 into this is root 9, that is 3 plus 3 is 6, that is 1 plus 1 upon 36, which is going to give 36 plus 1, 37 upon 36. This is what your final answer. So likewise students, ये extra question में ये सोचने वाली बात थी कि वहां पे अपने को split up क्या करना है। This is similar question as question third का first, but थोड़ा इसमें आपको variety मिली है देखने के लिए, and therefore I have taken this additional question in front of you. This is very important. Student properly इसको आप रेफर करना और लिख लेना बराबर से। एक्स्ट्रा क्वेश्चन जो मैंने लिया है, similar type of questions you will find in the extra questions what we have provided to you in the application. So please refer all sorts of questions like this. Students लिख लिया हो तो आज हम यहाँ रुकेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट लेक्चर ऑनवर्ड्स वी विल सी फर्दर टाइप ऑफ लिमिट्स, जिसमें एक्सपोनेंशियल लिमिट, लॉगरिदमिक लिमिट, ये आगे के कुछ और कंसेप्ट लिमिट के और हमको देखने। जैसे ये एल्जेब्रिक लिमिट की बात हमने कंप्लीट करी है। इन दैट नॉर्मल क्वेश्चंस थे जो डायरेक्ट अप्लाई होने वाले क्वेश्चन भी हो सकते हैं, फिर वेक्टराइजेशन के बेसिस पे हुए, फिर रैशनलाइजेशन के बेसिस पे हुए,
एक्स्ट्रा, और ये सब क्वेश्चन को हमने कवर किया एल्जेब्रिक लिमिट के अंदर। मगर आगे जो है एक्सपोनेंशियल और लॉगरिथमिक फंक्शन के बेसिस पे लिमिट के क्वेश्चंस हमको देखने हैं। तो पहले तो मैं वो आपको फंक्शन के बारे में बात करूंगा और फिर हम उसके लिमिट के ऊपर चर्चा करेंगे। सो टिल दैट मच टाइम यू प्रैक्टिस दिस क्वेश्चंस। ये जितने भी क्वेश्चंस के टाइप कंप्लीट हुए हैं उसके हम प्रैक्टिस आपको लेना है, एंड वी विल further continue with the next time. Thank you, friends.